हाँ Okay. Acceleration due to gravity. Stop bullshit. So we are starting off with the topic fluid mechanics. Last class we have done only fluids at rest. Means right. Fluids at rest means where the fluid was stored in a container. It was not moving anywhere. But in this case, today we'll be doing fluids in motion. Means the fluids will move from one point to another. कहाँ फ्लो करता है फ्लूइड? जैसे पाइप के अंदर से या रिवर्स से या कोई भी जगह से. So liquids in general, obviously not liquids, any object try to move from higher level to lower level. Since the liquids don't have their own shape, they can flow, and that's why we call them fluids. ठीक है? Now the question that arises, how will they flow, in what manner? First concept we'll be learning today is the equation of continuity. What does it say? Have you ever observed when you are washing your face from water from a tap? You'll see if you close a portion of the tap or cover a portion of the tap, the water sprinkles out at a very high speed. Right? The water springs out, water comes out at a very high speed. I don't know if you have ever poured water into any garden or anything with the help of a pipe. तब पाइप का मुंह प्रेस करने से वो बहुत ज़्यादा दूर तक चला जाता है. अरे अच्छा, तो ये जो होता है ये क्यों होता है? जब हम लोग पाइप का मुंह छोटा कर देते हैं तब ज्यादा स्पीड से पानी क्यों निकलता है? प्रेशर ज्यादा नहीं होता है. दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग कंसेप्ट. थोड़ा ध्यान से इसको दिमाग के अंदर डाल लो. फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ जाता है नॉट बिकॉज ऑफ द प्रेशर, इट इज बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एक्चुअली वेलोसिटी फ्लूइड का बढ़ता है ना, तो उससे क्या होता है, उससे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटने से प्रेशर वहां पर फ्लो वेलोसिटी बढ़ जाता है. इसके कारण नहीं कि प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर एक्चुअली वहां पर ड्रॉप कर जाता है, इट डिक्रीजेस. कैसे? विल डू इट आफ्टरवर्ड्स. पहले हम समझते हैं कि क्यों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटने से स्पीड बढ़ जाता है. व्हाई डज द स्पीड इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? Portion of, obviously portion of a pipe. Now see, this is a portion of a pipe. Over here the area of cross section is A1 and over here the area of cross section is A2. Of course you can understand that A1 is greater than A2. अब यहाँ पर मान लो the fluid is entering this pipe with a velocity V1 and यहाँ पर मान लो the fluid is coming out with a velocity V2. So, हम लोगों को निकालना है कि V1 और V2 में से कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा. यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा assumption कर रहे हैं. क्या assumption कर रहे हैं? हम लोग आइडियल लिक्विड ले रहे हैं. आइडियल लिक्विड क्या होता है? क्या पढ़ा था हमने? डिस्कस. राइट. वो कंप्रेसिबल नहीं होता है, मतलब उसका डेंसिटी चेंज. अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना बता. यहाँ से जितना मास ऑफ वाटर अंदर जाएगा उतना ही मास ऑफ वाटर. So conservation of mass principle says that the amount of mass of water entering this end will be equal to the amount of water coming out. अब मुझे देखो एक चीज बताओ, अगर A1 is the area of cross section and V1 is the velocity, then do you know A1 into V1 हम लोगों को क्या देता है? वॉल्यूम पर फ्लूइड पर यूनिट एरिया क्या देता है हम लोगों को? क्यों? देखो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना. सो A1 into V1 को हम लोग A1 into D1 by T बोल सकते हैं. A1 क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और D1 has the distance traveled in the time T. So A1 is the area of cross section and D1 is the distance. Area of cross section into distance multiply करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? वॉल्यूम ना मिलेगा? आएगा volume by time. That is why it is called volume flow rate. समझ में आया?
A1 into V1 is वॉल्यूम फ्लो रेट। अगर ये वॉल्यूम फ्लो रेट है और इसके साथ हम लोग डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिलना चाहिए? gives mass flow rate। So वॉल्यूम देखो A1 V1 into रो करेंगे तो ये वॉल्यूम into डेंसिटी बाय टाइम हो जाएगा। So वॉल्यूम into डेंसिटी क्या होता है? मास। तो मास बाय टाइम हो जाएगा ना, तो इसीलिए दिस रो A1 V1 gives the mass flow rate। अब मुझे एक चीज बताओ, मास इज कंजर्व्ड, तो जितना मास ऑफ लिक्विड यहां अंदर जाएगा बाहर आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस mass remains conserved in a flow, therefore A1 V1 rho should be equal to, you understand why? Because A2 V2 rho is the mass flow rate through the other end। तो rho तो सेम रहा, काट दिया हम लोग, तो क्या बोल सकते हैं? A1 V1 is equal to, so this is called equation of continuity। Equation of continuity, right? So equation of continuity is derived from conservation of mass principle। conservation of mass principle से equation of continuity आता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर A1 V1 equal to A2 V2 है और A1 is greater than A2 है, so what do you say about V1 and V2? V2 greater than V1। Since A1 is greater than A2, therefore V2 is, इसीलिए एरिया ऑफ क्रॉसिंग छोटा होने से स्पीड। कभी टैप से जब पानी गिरता है, उसे देखा है कि टैप का ओपनिंग, मान लो नोजल ओपनिंग ऐसा है, यहाँ से पानी गिरता है, लेकिन जितना वो नीचे जाता जाता है उतना वो पतला होते जाता है। ऐसा क्यों? राइट, जितना वो नीचे जा रहा है, ग्रेविटी के लिए नीचे जा रहा है ना, तो वो एक्सीलरेट कर रहा है नीचे, मतलब उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? जितना नीचे जाएगा वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो ये इक्वेशन क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसलिए वो छोटा हो जाएगा। मेरा घर में तो उल्टा होता है, नीचे ज्यादा हो जाता है। अरे वो अलग चीज के लिए होता है, यहाँ पर नोजल ओपन नहीं रहता है, कुछ ब्लॉकर रखा जाता है। ब्लॉकर रखने से क्या होता है, वो ऐसे स्प्रे हो जाता है। ठीक है, ये समझ आया? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?